Hello students, today we start new chapter of science, that is lesson number 10, Cell and Cell Organelles. So open your textbook and see page number 67. You know that what is cell? Cell is very important organ, or it is the structural and functional unit of living organisms. Means in every living organism the basic unit is made up of cell. Basically, there are two types of cell, that is prokaryotic and eukaryotic. What is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? Prokaryotic cells having lack of nuclear membrane or nucleus without nuclear membrane, means whatever the nuclear material, that is DNA or RNA, protein which is present in the cytoplasm of the cell and not inside the nuclear membrane. And in eukaryotic cell there is a presence of well-defined nucleus surrounded by a nuclear membrane. In eukaryotic cell most of the cell organelles are present, but in prokaryotic cell it is very simple and primitive type of cell, so lack of most of the cell organelles and nuclear membrane also. In order to observe the cell, we have to use the microscope. We generally use compound microscope. Now in this lesson, we have to discuss about the structure of cell and their various components. So, cell having different membrane bound cell organelles. Here the diagram is given. This is the diagram of plant cell and this is about the animal cell. So what is the basic difference between plant cell and animal cell? In plant cell, cell wall is present and in animal cell, cell wall is absent. Now see here, the various cell organelles are given and you have to write the names of that cell organelles. In the last year, you have discussed about the cell organelles. So this is the animal cell. Now this is the nucleus, nucleolus, endoplasmic reticulum, this is mitochondria. Then this is plasma membrane. It is called as the small circular bodies are there, that is called as the vesicles. This is the Golgi bodies. Then we see about the plant cell. Now in plant cell there is a presence of Golgi bodies. Then this is the large vacuole which is present at the center, and due to this nucleus is slightly towards the periphery. This is the nucleus and inside the nucleus there is a presence of nucleolus. So in this way there are various cell organelles are present in the nucleus. Now we see the difference between plant cell and animal cell and what is the similarity between them. So first we see the components of the cell. First is the cell membrane. So cell membrane is present in both the cell, animal cell and plant cell. Then cell wall. Cell wall is absent in animal cell and present in plant cell. Then lysosomes present in animal cell and absent in plant cell. Plastids are present in plant cell and absent in animal cell. Then endoplasmic reticulum, vacuole, Golgi complex and mitochondria. These are present in the plant as well as animal cell. Now we discuss the cell components one by one. So first we discuss about the cell wall. We know that in plant cell there is outermost covering. सबसे बाहर का जो आवरण रहता है वो किससे बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल. तो ये जो सेल वॉल है ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन अलगी, फंजाई एंड प्लांट्स. एनिमल्स में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है. तो सेल वॉल क्या है, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट है अराउंड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग कोट है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, तो उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल. तो ये किससे बना है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स से बना है? सेलुलोज एंड पेक्टिन. और उसके साथ कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटिन है, एंड दे आर एडेड इन अ सेल वॉल एज पर नीड. सो फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल. तो मेन फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल. यानी सेल में एक्सेस वाटर न आने के लिए ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है. देन सेकंड इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane
or it is also called as the cell membrane. So that plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन जो है तो ये क्या है, इट इज़ अ थिन फ्रैजिल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. तो ये जो क्या है, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो क्या करते हैं, सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सो स्ट्रक्चर, नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, यानी इसमें फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है और उसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इट अलाउज सर्टन सब्सटेंस टू कम इनसाइड एंड गो आउट. यानी कुछ ही सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं. सो दैट नेचर इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी ऑफ द सेल. नाउ सम सब्सटेंस विच आर यूजफुल, सम यूजफुल सब्सटेंस कम इनसाइड एंड गो आउटसाइड. So that is called as the selective permeability of the cell. Now if any changes occur outside the cell, the cellular movement doesn't change due to plasma membrane. यानी outside environment अगर change होता है फिर भी plasma membrane जो है वो क्या रहेंगे, it remain as it is or intact. So there is no change occur. So that is called as the homeostasis, to maintain a balance with outer environment. Now how the substance come inside and go out of the cell? So there are 2 main processes are there, that is called as the endocytosis and exocytosis. Now for that activities there is no need of energy. तो endocytosis का क्या मतलब है, endo यानी inside and cyto means cell. To gulp or engulf food, यानी कुछ जो substance है या food material है वो inside लेना cell के from outer environment. And what is mean by exocytosis? टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल. सेल में जो वेस्ट मटेरियल तैयार होता है उसको क्या करना, बाहर डालना. दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन. सो प्रोसेस डजंट दोज दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी. तो ये दो जो प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है. तो वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन और जो सेकंड है दैट इज़ द ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस है जनरली जो गैशियस सब्सटेंस है उसके लिए होती है और जो सॉलिड या गैशियस सब्सटेंस है. और ऑस्मोसिस जो है इट इज़ ओनली फॉर द लिक्विड सब्सटेंस. सो डिफ्यूजन यानी एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस, द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर. यानी जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से जहाँ पे कम वाटर है वहाँ वाटर क्या होता है, ट्रैवल होता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस. अब ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन 3 पॉसिबिलिटीज. मीन्स वेदर द सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अब ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. क्या करना है आपको, 4 से 5 रेजिन्स लेने हैं जिसे हम किशमिश कहते हैं या मराठी में मनुका कहते हैं. तो एक बीकर लेना है, उसमें हमें क्या करना है, 4 से 5 किशमिश या रेजिन्स लेने हैं और उसको 1 या 1.5 घंटे तक रखना है. आफ्टर दैट सेम रेजिन्स, वही रेजिन्स आपको यानी पहले उसका साइज़ देखना है वेदर इट इज़ स्वेल और नॉट. बाद में वही रेजिन्स आपको किस में डालने हैं, शुगर सोल्यूशन में. और फिर से 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, व्हेन रेजिन्स पुट इन अ शुगर सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस. और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन दे केप्ट इन वाटर, तो वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर और रैदर मॉइस्चर, सो दे गेट स्वेल. और उसके कारण क्या होता है, वो स्वेल होते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है. सो व्हाट इज मीन बाय दैट, फर्स्ट वी सी द आइसोटोनिक सोल्यूशन. अब आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज़ अ सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, सो वाटर डजेंट गो इन और आउट. यानी सेल के बाहर और अंदर अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वाटर अंदर भी नहीं जाएगा और अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा. तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द
tonic solution. Then what about the hypotonic solution? The cell has a less water than outside medium. अगर सेल के अंदर वाटर कम है आउटसाइड मीडियम के कंपेयर में, तो क्या होगा, बाहर से वाटर अंदर जाएगा और उसके कारण क्या होगा, एंडोस्मोसिस. इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर, आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड. देन हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी अगर सेल के अंदर क्या है, हैज़ मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, यानी अंदर ज़्यादा वाटर है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड मीडियम, तो क्या होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसका डिफरेंस तैयार होगा और उसके कारण क्या होगा, सेल लूजेस वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रूट पीसेस आर केप्ट इन अ थिक सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन. कुछ फ्रूट्स के अगर पीसेस हम शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, जो फ्रूट में जो वाटर है वो बाहर निकलता है और इसके कारण वो जो फ्रूट के पीसेस है वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक होंगे. तो इफ प्लांट सेल और एनिमल सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सॉस्मोसिस. यानी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस होता है. यानी वाटर क्या करते हैं, लूजेस वाटर फ्रॉम इनसाइड इनटू आउटर मीडियम और उसके कारण क्या होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोलिसिस. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस. नाउ सी हियर द फिगर शोज, it shows three conditions, that is hypotonic, hypertonic and isotonic. Now here osmosis in plant cell. So here the solution ये क्या, ये कौन से इसमें होगा, that is hypertonic solution. This is isotonic solution. और ये जो है इसमें ये कौन सा solution, यानी ये जो plant cell है ये कौन से solution में रहेंगे, hypotonic solution. Then osmosis in animal cells. See here hypotonic solution. hypotonic solution में cells shrink हो जाते हैं, isotonic solution में cells as it is रहते हैं. और जो hypotonic solution है इसमें cells क्या करते हैं, absorb water from the outside medium और उसके कारण cell क्या होते हैं, swells and turgid. So there are three possibilities according to the type of solution, hypotonic, isotonic or hypotonic. So this process is called as the osmosis. The traveling of water from a part with more water to a part with a less water through a selective permeable membrane. So that process is called as osmosis. और ये जो process है that is the physical process.